Assalamu alaikum class, I hope you will be fine. So class, today we will study about interesting information and test yourself of your chapter number 14, the atmosphere. So we will start from page number 118. This paragraph is very important for MCQs. First of all, we will study about sunlight has short wavelength radiation of sunlight. Second point, solar energy absorbed by the earth's surface is transformed into heat energy which is of longer wavelength. Heat energy which is of longer wavelength. On the average, अगर average देखा जाए, there is total 32% reflection of light, 6% being reflected from the earth's surface, 6% being reflected from the earth's surface. After that 26 will remain, and 26% being reflected back into space because of clouds, gases and dust particle in the atmosphere. Okay class, total average is 32%. On third point, fourth point, 18% of sunlight is absorbed by atmospheric gases. 18% of sunlight is absorbed by atmospheric gases, and the remaining 50%, 50% reaches about the earth and is absorbed by it. This energy is radiated as heat energy for longer wavelength. As we study heat energy for longer wavelength here, which is absorbed by water vapors and carbon dioxide in atmosphere. First of all, we will study about 32%, after that 18%, and after that 50%. Total is 100%. Okay class? Now we will study about second interesting information on your page number 121 of chapter number 14. Here, ozone is quite a well-known gas. Photocopiers and any other sources of static electricity can cause it to form from oxygen. You may have noticed a strange bitter smell near photocopiers. This is ozone. It is a poisonous gas and it is formed on hot days in badly polluted cities. Ozone is, as we study earlier, ozone is quite a well known gas. जब हम फोटोकॉपी जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, बिटर स्मेल आ रही होती है, वहाँ पे ओजोन गैस जो होती है वो हम नोटिस कर सकते हैं बाय स्मेल से. नेक्स्ट है हमारा टेस्ट योर सेल्फ 14.1. 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर. हमने एटमॉस्फेयर की जब लेयर स्टडी की थी, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन भी स्टडी की थी 118 पेज नंबर पर. जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, मार्क करवाती हूँ 118 पेज नंबर. सी, एटमॉस्फेयर इज द एनवेल्प ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ. आप ये मार्क कर लेंगे पूरा पैराग्राफ. सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. सेकेंड पे वो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट. एटमॉस्फेयर जो हम लोगों ने अभी मार्क किया वो है, वो आप एज इट इज़ मार्क कर लेंगे. एज वेल एज यू विल मैंशन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच यू स्टडी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. एंड इन्वायरमेंट, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी लेसन प्लान में. Environment is the sum of all social, biological, physical and chemical factors which constitutes the surrounding of living things like air, water, food and sunlight. The all living and non-living things, this is all included in our environment. This question I will provide in your lesson planner in the written form, but about atmosphere you can note on your book. थर्ड क्वेश्चन, नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर में जब हमने स्टडी किया था तो मेजर कॉन्स्टिट्यूट की दो गैसेस थी जो मैंने आप लोगों को बार बार बताई थी. आप आ जाएं ट्रोपोस्फेयर पे, अगर आप देखें ट्रोपोस्फेयर 120 पेज नंबर पे फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रोपोस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. नेक्स्ट आ जाए फोर्थ क्वेश्चन पे, हाउ इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर मेंटेन्ड.
ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन रहता है। अगेन आ जाएं 120 पेज पे ट्रोपोस्फेयर का टॉपिक निकालें। एज वी स्टडी इन डिटेल के कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इज निग्लिजिबल इन एटमॉस्फेयर बट they play a significant role in maintaining temperature of atmosphere because both of these gases allow visible light to pass through it but absorb infrared radiations emitted by Earth's surface. Therefore, these gases absorb much of the outgoing radiation and warm the atmosphere. जहाँ तक आप मार्क करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है वेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट। ओजोन लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है। अगेन आ जाए पेज नंबर 120 पे। हम लोगों ने ओजोन लेयर किस लेयर में स्टडी की थी, स्ट्रेटोस्फेयर में स्टडी की थी। सो एज वी स्टडी, जब हमने स्ट्रेटोस्फेयर लेयर को इन डिटेल डिस्कस किया था कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी वेरी लो यूवी रेडिएशंस की वजह से जो ओजोन लेयर है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन एटम था वो नहीं होता। और हमने स्ट्रेटोस्फेयर की मिडल स्ट्रेटोस्फेयर लेयर और अपर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर विल ब्रेक डाउन इन अपर लेयर एंड फॉर्म्ड इन मिडल लेयर। सो mark from upper layer to mid stratosphere layer. You can see on your page number 120 second last line पे start होगा upper layer absorb high energy ultraviolet radiation से till mid stratosphere, यहाँ तक आप लोग करेंगे इस रिएक्शन तक। अगर आप बताना चाहें आप भी बता सकते हैं। द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर रिसीव वेरी लो UV radiation, that's why ozone formation is not formed there. Okay. Next question है why is the temperature of upper stratosphere higher? upper stratosphere का जो temperature है वो क्यों high होता है? In which as I already tell के in upper layer of stratosphere here high energy ultraviolet radiations will absorb from the sun, which breaks monatomic and diatomic oxygen from the ozone. So you will mark from the here the presence of ozone from here to here. Due to the presence of ozone and absorption of radiation, the temperature of stratosphere of upper layer will be high and it will be 2 degrees Celsius. नेक्स्ट है पेज नंबर 124। 124 पे कार्बन मोनोऑक्साइड का उसने बताया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एयर पोल्यूटेंट। यू कैन रीड फ्रॉम हियर इट्स हेल्थ हैजर्ड गैस बट इट्स कलरलेस एंड odorless. ड्यू टू इट्स odorless and colorless nature we cannot identify it physically. That's why in closed rooms and in closed areas there is not allowed of burning because there is shortage of oxygen and we know that जब कोई भी बर्निंग या कोई फॉसल फ्यूल या कोई भी चीज़ बर्न होती है तो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर इन ओपन एयर ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन highly amount, but in closed room and in closed holes there is shortage of oxygen. Due to the shortage of oxygen there is not produced carbon dioxide, there is produced carbon monoxide. And carbon monoxide we cannot identify carbon monoxide because it has not physical any property कि हम identify कर सकें इसके कलर से या इसकी किसी फ्रेगरेंस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्टार्टिंग में जब कार्बन मोनोऑक्साइड के हेडेक एंड फिर थोड़ी बहुत फटीग और उसके बाद थोड़ा दम घुटना, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। डेट्स वाई वो कह रहा है क्लोज्ड प्लेसेस में, क्लोज्ड एरियाज़ में देयर इज़ नो अलाउ ऑफ बर्निंग। ठीक है, इट इज़ एडवाइज टू स्विच ऑफ कोल एंड गैस हीटर्स कुकिंग रेंज एक्स्ट्रा बिफोर गोइंग टू स्लीप। इसलिए हम जब सोते वक्त हम ये कहते हैं कि रूम्स वगैरह में जो भी बर्निंग या हीटर वगैरह होते हैं
इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्ट्स होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हेल्थ हैजर्ड गैस, और वाई इट इज़ हेल्थ हैजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कन्वर्टर्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कन्वर्टर्स। कन्वर्टर्स को क्यों यूज़ किया जाता है, कन्वर्टर्स क्या होते हैं, कन्वर्टर्स का क्या रोल है, वाई कन्वर्टर्स आर बेनिफिशियल फॉर आर इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। कन्वर्टर्स, कन्वर्टर इज़ द वर्ड विच वी यूज़ फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कन्वर्टर इज़ अ डिवाइस, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज इन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, जो भी हमारे इंजन्स वगैरह ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर होता है। अब वहाँ पे ये क्या काम करता है, अब आपको पता है जब हम लोग अपने गाड़ियों के इंजन में फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स देयर विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड. There are so many oxides which are produced by burning, which we study in this chapter. So these converters convert carbon monoxide into carbon dioxide and nitrogen oxide into nitrogen gas. How it will convert? It converts before it enters in air. Catalytic converter. Catalytic converter mean any catalyst will be used here, और अटैच टू ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट, उसके साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। व्हेन हॉट गैसेस पास थ्रू द कन्वर्टर आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब वहाँ से जो गैसेस हैं वो पास होती हैं, वो इस कन्वर्टर के साथ अटैच कर दी जाती हैं। दीज हार्मफुल गैसेस, अब वो हार्मफुल गैसेस क्या करती हैं, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड होगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO क्या होगा, ये रिड्यूस्ड होगा, अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस के अंदर। सो क्लास, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 125। 125 में वो कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द लाइफ गैस फॉर प्लांट एज कार्बन एज ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। As we all know that carbon dioxide is why beneficial for plants and why oxygen for beneficial for us, because in breathing we use oxygen and carbon dioxide is the used in photosynthesis for plants. As well carbon dioxides absorb infrared radiations, हम लोगों ने carbon dioxide का पढ़ा था in last topic, radiations emitted by earth. Although carbon dioxide is negligible as compared to nitrogen and oxygen gases, हमने ये भी पढ़ा था, yet it heats retaining capacity, it remains, ये heat capacity को heat को control करता है। Without carbon dioxide life on earth would have been impossible, ये मैंने बार बार लाइन पढ़ाई थी जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है उसी ने हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया हुआ है। अब विदाउट, मैंने कहा था, आपको बताया था कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। नेक्स्ट लास्ट जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एसिडिक गैसेस का बताया हुआ है, फ्रॉम नियर बाई इंडस्ट्रियल यूनिट्स कंट्रीब्यूट टू द वेयरिंग अवे ऑफ द फेमस मार्बल बिल्डिंग लाइक ताजमहल इन इंडिया। ये भी MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन आ सकता है, वाई आवर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो माइनस में चला जाएगा, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहेगा और हम इतनी ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, कोल्ड इन्वायरमेंट में। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ 14.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एयर प्लूटेंट। एयर प्लूटेंट क्या है? एयर प्लूटेंट आपके पेज नंबर 121 पे आए। अब देखें, एयर प्लूटेंट लास्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक प्लूटेंट्स में, दी हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर प्लूटेंट्स। इसमें आप बता सकते हैं सेकेंडरी प्लूटेंट्स भी होते हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स भी होते हैं। पेज नंबर 122 नेक्स्ट पेज पे ही है, आप उसमें प्राइमरी प्लूटेंट्स और सेकेंडरी प्लूटेंट्स के एक एग्जाम्पल दे दें कि प्राइमरी प्लूटेंट्स में हमारे पास SO2 एंड NO है, सेकेंडरी प्लूटेंट्स में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, उसकी एग्जाम्पल दे दें और एयर प्लूटेंट की डेफिनेशन लिख दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है नेम 3 प्राइमरी एयर प्लूटेंट। 3 प्राइमरी एयर प्लूटेंट्स के नाम बताएं, वो आप लोग अपनी बुक्स पे मेंशन कर लें और आप लोगों के लेसन प्लान में लिखे हुए आ जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
ये प्राइमरी जो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, आप लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं इसमें, वो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एज प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पढ़े थे कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे पास सल्फ़र, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सल्फ़र डाइऑक्साइड है, NH3 है, अमोनिया है, और हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे पास CH4। ये भी प्राइमरी, फर्स्ट वाला प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सेकंड वाला प्राइमरी पोल्यूटेंट है और थर्ड वाला प्राइमरी पोल्यूटेंट है। बाकी मैंने सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आपको बताया था जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करके जो पोल्यूटेंट्स बनाते हैं वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ओजोन है, O3। और आपको पता है O3 कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, व्हाई इज कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। आप लोग ग्रीन हाउस गैस वाला टॉपिक 123 पेज नंबर पे है, उस पे आए। ये कंप्लीट आप लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, आप लोग इसको मार्क कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस। यहाँ से कंप्लीट इसमें इसको करेंगे और इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द फ्लड रिस्क इंक्रीजिंग। फ्लड रिस्क क्यों इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब मैं आप लोगों को पॉइंट्स पढ़ा रही थी। पेज नंबर 124 पे आ जाए, 124 की ये फर्स्ट 3 पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उसे क्या कमेंट करें, बर्निंग इन ओपन एयर इज़ प्रेफर्ड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ओपन एयर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज़्यादा होता है देन इन क्लोज्ड एरियाज़ में। तो जब ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। आप लोग लिख लें अलग से कि because burning in closed room can cause a production of carbon monoxide and as a result death may occur due to suffocation। ये आप लोगों को लेसन प्लानर में क्वेश्चन लिखा हुआ भी आ जाएगा कि क्यों हम ओपन एयर में जो बर्निंग है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन ओपन एयर बर्निंग प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच बिकम पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वी स्टडी इज नॉट अ पॉइजनस गैस वेयर इज इन क्लोज प्लेसेस वी ऑल नो डैट वहाँ पे शॉर्टेज होगी ऑक्सीजन की और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड अभी हमने पढ़ा इज अ पॉइजनस गैस एंड कॉज डेथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स एमिटेड नेचुरली। कैसे एमिट होते हैं नेचुरली। पेज नंबर 125 पे आ जाएं। नेचुरली अक्रिंग sulfur containing compounds are emitted in the bacterial decay of organic matter in volcanic gases and forest fire। यहाँ तक करेंगे और मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हम सल्फर के कंपाउंड्स स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज, ये डॉज लिखा हुआ है इसे डज कर ले। हाउ डज कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबस्टन इंजन प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हम फॉसिल फ्यूल अपने इंटरनल इंजन में यूज़ करते हैं तो वो किस तरह प्रोड्यूस करता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। 125 पेज नंबर पे ही इसका आंसर है, बल्कि इसी पेज पे आप आ जाएं जो ये ओपन किया हुआ है सबसे टॉप पे देखें 126 पेज पे, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबस्टन इंजन। यहाँ से आप लोग जहाँ तक मार्क कर लें ये दोनों रिएक्शंस इसके अंदर इंक्लूड होंगे। की क्लास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपकी रह गई है 131 पेज नंबर पे। अब इसमें वो आपसे पूछ सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली इंसिनरेशन प्रोसेस या राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन में मैं आप लोगों को ब्रीफली इसको डिस्कस कर देती हूँ, आप लोग रीड कर सकते हैं। इसमें जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल या वेस्ट गार्बेज होता है उसको बर्न किया जाता है। उसका टेम्परेचर रेंज भी उसने लिखी हुई है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है 650 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस पे उसको इंसिनरेट मीन्स उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। अब आपको पता है जितना भी जो हम हमारे घरों का ही अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन जब हम उसको सॉलिड मैस को बर्न करेंगे तो वो एक बर्न होके बहुत ज़्यादा, जिससे हम ऐश कहते हैं, उसके अंदर बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, लाइक अगर हमारे पास 100% कोई वेस्ट मटेरियल है, जब हम उसे बर्न करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 10 to 20% रह जाएगा। चले 20% आप कर लें तो वो कह रहा है उसका साइज़ है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, 100 में से वो कह रहा है 80 to 85% वो, और जो उसका ओरिजिनल वेस्ट होता है सॉलिड मैस ऑफ द ओरिजिनल वेस्ट बाय 80 to 85% एंड कन्वर्ट द वेस्ट मटेरियल टू ऐश, फ्लू गैसेज एंड हीट। फ्लू गैसेज में वो वाली सारी गैसेज आती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स
और जितनी भी वो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड्स और डाइऑक्सिन्स, ये सारे जो फ्लू गैसेस हैं वो हैं, पॉइजनस गैसेस इनको कहते हैं। और बाकी ये ऐश वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा और हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो उसका मैस होता है वो बहुत कम रह जाता है। बस इंसिनरेशन प्रोसेस का आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंसिनरेशन की इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर बिटवीन 650 टू 1100 डिग्री सेल्सियस। ओके क्लास, अब 127 पेज नंबर पे हमारे पास है रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। गवर्नमेंट कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है या उसका क्या रोल है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। अब इसके अंदर उसने 4 पॉइंट्स दिए हुए हमें कि गवर्नमेंट किस किस वेज के थ्रू, किस किस रूल्स के थ्रू कंट्रोल कर सकती है पोल्यूशन को। अगर हम अपनी वैसे डेली लाइफ में देखें तो ड्यू टू दी हाई पॉपुलेशन, डे बाय डे जो हमारी गाड़ियां हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग भी हम लोगों को डे बाय डे सोर्सेज भी उसके ज़्यादा क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल्स में जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी अमाउंट में जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है, गैसेज हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं और हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और हम कोई बायोडीज़ल, कोई इस तरह की बायोगैसेस यूज़ नहीं कर रहे, या ना ही अब ये सोलर पैनल्स तो अभी आया है, इसके अलावा हम कोई बैटरीज वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है हमारे पास के हम उसे यूज़ कर सकें। और अगर आप देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान हमारे एरियाज़ में बहुत कम से कम है। हम लोग हर इंसान यही चाहता है कि उसके पास अपनी गाड़ी हो और वो उसी को यूज़ करे। तो पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे और हम लोग जो ये डीज़ल वगैरह और या पेट्रोल या सीएनजी गैसेस के अलावा जो इलेक्ट्रिक पावर बैटरीज होती हैं, जो पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनको यूज़ करें और जो बायोडीज़ल है उसको प्रमोट करें, बजाय ये कि हम हाइड्रोकार्बन जैसे हम ये मेथनॉल, एथनॉल और बायोडीज़ल यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जो हम ये फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एयर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग गाड़ियों में जो हाई ऑक्टेन नंबर है वो भी आप लोगों को पता है फ्यूल यूज़ होता है, तो वो भी उसके अंदर जब हाई अमाउंट में हाइड्रोकार्बन्स यूज़ होंगे तो हाई अमाउंट में जो है पोल्यूशन है वो भी क्रिएट होगा ऑब्वियसली। तो उनके बर्निंग की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर सॉर्टेड गैसेज हैं वो भी क्रिएट होंगी। और जिस तरह अभी हम लोगों ने कन्वर्टर पढ़ा, जो अभी हमने पढ़ा वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में यूज़ कर रहा है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से हमें कन्वर्टर्स को यूज़ करना चाहिए जो हमारे पास प्लूटेड गैसें हैं, जो प्लूटेंट्स हैं हमारे, उनको कन्वर्ट कर सके उन गैसेस के अंदर जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या जो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस नहीं है। सो इसके अंदर बस यही है। नेक्स्ट अब हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 129। हाउ इज़ एसिड रेन प्रोड्यूस। अब एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होती है, मैंने एसिड रेन टॉपिक के अंदर ये इन डिटेल आपको पढ़ाया था। आप लोग आ जाए 127 पेज नंबर पर, ये आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लें इसका, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से स्टार्ट करें और बाय रेन वाटर, यहाँ तक इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डज एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स। एसिड रेन बिल्डिंग्स को कैसे डैमेज कर रहा है, हम लोगों ने इसके 4 पॉइंट्स पढ़े थे एसिड रेन के इफेक्ट्स के। तो आप लोग आ जाए पेज नंबर 128 पर। अब आप लोग देखिए उसने हमसे बिल्डिंग्स की डैमेजिंग पूछा है, तो हमने बिल्डिंग की जो डैमेजिंग है वो कौन से पॉइंट में पढ़ा था, पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट होगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाउ इज एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय एसिड रेन। ये हमारे पास जो अभी हम लोगों ने मार्क किया है पॉइंट नंबर 2, उससे ऊपर वाला जो पॉइंट नंबर 1 है वो एक्वेटिक लाइफ के इफेक्ट का, वो आप लोग मार्क कर लें, पेज नंबर 128 पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर प्लांट्स डाइंग डे बाय डे, इस पर कमेंट करें। तो ये भी 128 पेज नंबर पे है कि जो प्लांट्स और वेजिटेटिव लाइफ है वो क्यों डैमेज हो रही है डे बाय डे, जो भी हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 और 1 मार्क किया है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी आप लोग उसका जो पॉइंट नंबर 3 है उसको मार्क कर लेंगे कि प्लांट्स और वेजिटेटिव लाइफ है वो किस तरीके से डैमेज हो रही है। तो आप लोग इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 और 4 दोनों करेंगे, दोनों के अंदर प्लांट्स और वेजिटेटिव लाइफ का बताया गया है कि किस तरीके से वो डे बाय डे डाई हो रही है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट योर सेल्फ है पेज नंबर 131 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई करें ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड।
अभी हम लोगों ने ओजोन का टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा ओजोन का ही था। हमने ओजोन में इन डिटेल पढ़ा था कि ओजोन क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो पेज नंबर 129 पे आ जाएं। 129 पेज पे आप ये पूरा कंप्लीट करेंगे विद इन डायग्राम, क्योंकि आप लोग उस पर दिखाएंगे कि ओजोन लेयर किस तरीके से हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेडिएशन से किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131 का सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज़ ओजोन डिप्लीटिंग इन एटमोसफेयर। एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की लेयर है वो डे बाय डे क्यों डिप्लीट हो रही है, उसकी क्या रीज़न है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी एक रीज़न पढ़ी थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। ये आप लोग आ जाए पेज नंबर 130 पर। 130 पर आप लोग देखें, स्टार्ट हो रहा है हाउ एवर से, यहाँ से आप मार्क करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आप मार्क करेंगे और इसके यहाँ तक करेंगे ओजोन होल तक। वैसे तो इसमें आप लोगों ने जस्ट रीज़न लिखनी है कि क्यों जो ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट कर रही है एटमॉस्फेयर में। तो आप उसमें जस्ट ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये इसको इन डिटेल भी लिख सकते हैं ओजोन होल तक। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल, कह रहा है ओजोन होल क्या है। तो इसमें आप लोग करेंगे अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल, यहाँ से ये रिएक्शन भी आप लोग लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करेंगे। The region in which ozone layer depletes is called ozone hole. So next जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप लोग देखें, वो है वेयर इज़ द ओजोन लेयर फाउंड। ओजोन की जो लेयर है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया स्ट्रेटोस्फेयर में। तो अभी हम दोबारा इसको मार्क कर लेते हैं। पेज आ जाएं पेज नंबर 129 पर। इसमें भी आप लोग ये पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट मार्क कर लें। सो क्लास, आज हमारे टेस्ट योर सेल्फ और जितनी भी टेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी और टेस्ट योर सेल्फ थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह के थे जो मैं आप लोगों को लेसन प्लान जो आपका आएगा उसके अंदर ही नीचे उसको लिख के या मार्क करके भेज दूँगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।